الفاتحة على النبي الكريم عليه التحية والتسليم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد طب القلوب دوائها نور الأبصار ضيائها صدق الأبدان شفائها محمد مصطفى انصر إلينا شهيحة وسرى انصر إلينا مثال طائر انقا چرائی ترا یابم کجا انظر لینا غلام حیدر بحق شاہ مردان مراد دین دنیا ماروا کن اللہم فی العافیت فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ نور رشدی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين والرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور نگہ دید انصاف میں پیدا نور نگہ دید انسان ہوئے پیدا عالم کے جو آنکھوں سے پنہا ہوئے پیدا اور سایہ نگرا خاک پہ جس رشک قمر کا سایہ نگرا خاک پہ جس رشک قمر کا وہ ذل خدا سرور خوباں ہوئے پیدا وہ ذل خدا سرور خوباں ہوئے پیدا اور میرے سرکار کو گر حق میں پیدا نہ کیا ہوتا میرے سرکار کو گر حق میں پیدا نہ کیا ہوتا اظہار خدائی کا پھر کیسے بھلا ہوتا اظہار خدائی کا پھر کیسے بھلا ہوتا اور وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا. علماء ملت اسلامیہ حاضرین سامعین کرام آج ہمارا اور آپ کا اجتماع جس دن میں ہوا ہے آنے والا افراد و اشخاص بخوبی آشنا آج صرف اجازت کی دھرتی ہی پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی ایمان والے موجود ہیں نبی کا جشن منایا جا رہا ہے. میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن منایا جا رہا ہے کیوں نہ منایا جائے اس لیے کہ انسان تو کل بھی موجود تھا جب نبی کی میلاد نہیں ہوئی تھی انسان اس وقت بھی موجود تھا لیکن اس وقت کے انسان اور آج کے انسان میں فرق ہے. نبی کے میلاد سے قبل انسان ضرور تھا لیکن انسان درندہ بنا رسول کی تشریف آوری سے قبل انسان جانور بنا ہوا تھا انسان بھیڑیا بنا ہوا تھا انسان تھا انسان کی انسانیت دم توڑ رہی تھی
इंसान की इंसानियत सिसक रही थी, इंसान की इंसानियत कर्राह रही थी। लेकिन जब मेरे आका की मिलाद हुई, आका बज़ाहिर स्पर्श गीती पे तशरीफ लाए, इंसान को इंसानियत की मेराज हासिल हुई। इंसान इंसान कामिल बन गया, इंसान को जीने का सलीका मालूम हो गया, इंसान आला वारफा हो गया। तारीख गवाह है मुसलमानों, जब मेरे आका की मिलाद नहीं हुई थी, आका बज़ाहिर स्पर्श गीती पे तशरीफ नहीं लाए थे, तो इंसान इतना बड़ा दरिंदा बना हुआ था कि इंसान इंसान के खून का प्यासा नजर आता था, भाई भाई के जान का दुश्मन बनता नजर आ रहा था, बाप बेटी का कातिल बन रहा था, बेटे मां को जिंदा जला दिया करते थे, औरत से जीने का हक छीन लिया गया था, औरत शौहर जिंदा रहता था तो उसे जीने का हक था, शौहर मर जाता था तो उसे जीने का हक भी छीन लिया जाता था। दुनिया की तारीख नहीं है, बल्कि अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख है। रसूल के मिलाद से कबल अगर कोई औरत अभागन हो जाती थी, कोई औरत बेवा हो जाती थी, किसी औरत के सर से शौहर का साया उठ जाता था, उस औरत को शौहर के चिता पर जिंदा जला दिया जाए। दुनिया वाले उस औरत को मनहूस कहते थे। दुनिया कहे कहे कोई फर्क नहीं, लेकिन तारीख गवाह है मुसलमानों, बेटे मां को अभागन कहते थे, बेटे मां को मनहूस कहते थे। अल्लाह के रसूल की तशरीफ आवरी हुई, रसूल की मिलाद हुई, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। ऐसे दौर में सरकार तशरीफ ला रहे हैं कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, इंसान इंसान के खून का प्यासा नजर आ रहा था। ऐसे दौर में आका तशरीफ ला रहे हैं, औरतों को जीने का हक मिल गया, बेटियों को जिंदगी की भीख मिल गई, इंसान इंसानियत के मेराज तक पहुंच गया, इंसान इंसान कामिल बन गया। इफ़हाम और तफ़हीम के लिए हज़रात गिरामी मैं बताए देना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की हालत थी कि अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी, उस औरत को शौहर की चिता पर जिंदा जला दिया जाए। राजगीर की धरती है, एक औरत बेवा हो गई, रसूल की मिलाद नहीं हुई, आईने क्या एक रुख आप देखते हैं। बज़ाहिर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, रसूल की आमद से कबल राजगीर की धरती है, औरत बेवा हो गई, सर से शौहर का साया उड़ गया, शौहर ने दागे मुफारकत दे दिया। जमाने के दस्तूर के मुताबिक, उस वक्त के परंपरा के मुताबिक उस औरत को शौहर के चिता पर जिंदा जलाने की तैयारियां शुरू हुई। उस औरत को सती करने का प्रोग्राम बना दिया गया। मरने वाला एक छोटा सा बच्चा छोड़कर मरा, कम से बच्चा है, कभी मुर्दा बाप को देख रहा है, कभी माँ को दुल्हन की तरह सजते और संवरते देख रहा है, परेशान है। जमाने के दानिश्वरों के करीब जाता है, पूछता है ये क्या हो रहा है। दानिश्वरों ने बताया तुम बच्चे हो, जान नहीं रहे हो, जिस औरत के सर से शौहर का साया उतरता, जिसका पति दुनिया से चला जाता है,
वो औरत अभागन हो जाती है, वो औरत मनहूस हो जाती है। अगर वो बच गई तो उसका साया जिस पर पड़ जाएगा वो भी मनहूस हो जाएगा। लिहाजा इसे शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाएगा, सती कर दिया जाएगा। बच्चा रोने लगता है, दानिश्वरों के कदमों तले बैठ जाता है, अर्ज करता है कि तो दया की भी कथा कर दो, कुछ तो मुझ पर करम कर दो। अभी तो सर से बाल का साया उठा है, माँ के ममता के साये से भी दूर करना चाहते हो। मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा, किसे देख कर अपनी जिंदगी को परवान चढ़ाऊंगा, माँ के बगैर कैसे रहूंगा। आपस में मशवरा हुआ, बात तय हुई कि औरत को शौहर की चिता से जिंदा उठा दिया जाए और इसे कमरे में मुकफ्फल कर दिया जाए। बता दिया जाए औरत तू सुहागन नहीं रही, तू अभागन हो गई है, तेरे सर से शौहर का साया उठ गया है, तेरा शौहर मर गया है। अब एहतियात रहे, अपना मनहूस साया किसी पर नहीं डालना, अपने चेहरे को किसी को नहीं दिखाना, घर से बाहर नहीं निकलना। अगर तेरा साया भी किसी पे पड़ जाएगा तो वो भी मनहूस हो जाएगा। लिहाजा औरत को कमरे में मुकफ्फल कर दिया गया, दाना पानी खाना पर सब कुछ पर्दे के बाहर से दिया जा रहा है। हज़राते गिरामी 3 हफ्तों का लिबादा ओढ़ने लगे, हफ्ते महीनों का पोशाक पहनने लगे, महीने बरसहा वर्ष में गुजर गए। हज़राते गिरामी बरसहा वर्ष गुजर गया, बच्चा बड़ा हो गया, माँ बेचैन है, माँ परेशान है, हर रोज सोच सोच कर जिंदगी के लम्हात को गुजार रही है कि जिंदगी से तो बहुत अच्छी थी कि जब मेरे लाल को सहारे की जरूरत थी तो बेटे से मुझे दूर कर दिया गया। अब भला मेरे जीने से फायदा ही क्या है। न मालूम घर की जिम्मेदारियां पाकर मेरा बेटा कमजोर तो नहीं हो गया, मेरा लाल लहीफो नातमा तो नहीं हो गया, मेरा बेटा कैसा है। माँ परेशान है, लेकिन दानिश्वरों ने कहा है, उस जमाने के अक्लमंदों ने बताया है कि खबरदार अगर तेरा साया तेरे बेटे पर पड़ गया तो वो भी मनहूस हो गया। माँ अपने इस डर से अपने बेटे को देख भी नहीं रही है। लेकिन एक दिन पूरी रात माँ सो नहीं रही है। हज़राते गिरामी माँ रो रो कर परेशान है कि जिंदगी से तो मौत बेहतर है, जीने से क्या फायदा कि जब मैं अपने बेटे को नहीं देख सकती, बेटे के काम नहीं आ सकती, चाहे जो हो जाए आज मैं अपने लाल को देख कर रहूंगा। रातों रात माँ ने ये फैसला कर दिया। बिलाखिर माँ के ममता की जीत हो गई, फैसला हो गया। माँ ने सोच लिया जो हो जाए सुबह मैं अपने लाल को जरूर देखूंगी। मेरा बेटा कैसा हो गया, मेरा बेटा कमजोर तो नहीं हो गया, घर की जिम्मेदारियों को पाकर मेरे लाल को मेरी जरूरत तो नहीं है, जैसे हो मैं आज देखूंगी। हज़रात गिरामी सुबह का नूर तुलू हुआ, माँ दरवाजे के पीछे खड़ी है इस उम्मीद में कि बेटे के रूम कमरे का दरवाजा खुलेगा तो मैं अपने लाल को अपने कलेजे से लगा रखी। माँ दरवाजे के पीछे खड़ी है, इतने बेटे के घर का दरवाजा खुला। दरवाजे खुलने की आहट मिली, माँ ने भी अपना दरवाजा खोल लिया। बेवक्त माँ का दरवाजा खुला, बेटे की निगाह माँ के दरवाजे पर पड़ी, माँ की निगाह बेटे के दरवाजे पर पड़ी, दोनों की निगाहें मिल जाती हैं। माँ ममता से मजबूर होकर दौड़ी हुई अपने लाल को कलेजे से लगाने के लिए आगे बढ़ी है। हज़रात गिरामी लेकिन वो मनहूस बेटा आगे बढ़ता है, माँ के गले में हाथ देकर धक्का दे देता है, आवाज देता है, मनहूस औरत हमने तुम्हें जिंदगी की भी कथा की है, शौहर के चिता से जिंदा उठा दिया था, तुम्हें जिंदगी की भी कथा की, उसका बदला तुम हमें ये दे रही हो। ऐसे शुभ अवसर पे, ऐसे मुबारक मौके पर जबकि मैं माले तजारत लेकर घर से बाहर जा रहा हूँ तो अपना मनहूस साया मुझ पर डाल रही है। जब बेटे ने माँ को मनहूस कहा है, माँ के कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह आवाज पहुंच रही, माँ रोने लगती है, आसमान दुनिया की तरफ निगाह उठाती है, अर्ज करती है, इब्राहिम के खुदा हमने खूने जिगर पिला पिला कर अपने बेटे को बड़ा इसलिए किया था कि जब हमें सहारे की जरूरत पड़ेगी मेरा लाल मेरे लिए सहारा बनेगा, जब मेरे आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी मेरा बेटा मेरे आंखों का नूर बनेगा।
जब मेरी बिल्लियां थक जाएंगी मेरा लाल मेरे लिए ऐसा बनेगा। और जब सहारे की जरूरत पड़ी है बेटे ने मुझे मनहूस कह दिया, ए इब्राहिम के खुदा औरतों पर जुल्म कब तक होता रहेगा? ए इब्राहिम के खुदा बेटे माओ को अभागन कब तक कहते रहेंगे? ए इब्राहिम के खुदा ये बेटे माओ को मनहूस कब तक कहते रहेंगे? हज़रत गिरामी दुनिया जानती है कि जब रात की तारीकी गहरी होती है तो सुबह का नूर शुरू होता है, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ती है तो बारिश होती है। अल्लाह के बंदे अल्लाह के राह से गुमराह हो जाते हैं, गुमराही सरकशी हद से ज्यादा बढ़ती है तो खुदाए गफूर रहीम की रहमत को जोश आता है और किसी अजीम रहबर का ज़हूर होता है। जब जुल्म सितम हद से बढ़ा तशरीफ मोहम्मद ले आए, जब जुल्म सितम हद से बढ़ा तशरीफ मोहम्मद ले आए, पत्थर को अता की गोयाई अचार से कलमे पढ़वाए। रात गिरामी इधर औरत फरियाद कर रही है, उधर रसूल की मिलाद है। अल्लाह के रसूल तशरीफ ला चुके थे, आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फिगन हो चुके थे, आपका ज़ुहूर हो चुका था। अब आईने का पहला रुख आपने देख लिया, रसूल की मिलाद नहीं हुई थी तो बेटे माओ को मनहूस कह रहे थे, बेवाओं से जीने का हक छीन लिया गया था। अब आईने का दूसरा रुख देख लीजिए, रसूल की मिलाद हो गई, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, कैसे हकदारों का हक दे रहे हैं, बेसहारों के कैसे सहारा बन रहे हैं, बेबसों के कैसे बस बन रहे हैं, बेकसों के कैसे बेकस बन रहे हैं, अल्लाह के रसूल कैसी मदद फरमा रहे हैं। मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा, सहाबा की मुकद्दस जमात है। आईने का एक पहलू आपने देख लिया, रसूल के मिलाद से खबर बेटा माँ को मनहूस कह रहा था। अब आईने का दूसरा रुख देखिए, आका मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, इतने में एक बूढ़ा, एक कमजोर, एक नहीं, एक लागा आपका कांपता हुआ बारगाह मुस्तफा में हाजिर था। निगाह रहमत उठी, अल्लाह के रसूल ने इशारा फरमा दिया, आने वाले बैठ गए। गारे मुस्तफा खुतबा से फारिग हुए, आने वाले साहिब से सवाल किया, ये आने वाले साहिब किस घर से आए हो, आने का मकसद क्या है, कहना क्या चाहते हो? आने वाला साहिल अर्ज करता है, ए प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं जवान था ना, जब मेरे अंदर ताकत थी, मेरे अंदर तवानाई थी, मेरे अंदर हिम्मत थी, तो हुजूर मुझ पर एक परेशानी आ गई, एक मुसीबत के दलदल में फंस गया था। सरकार, मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने फौरन रब के बारगाह में इल्तिजाओं की भीख तलब की, अर्ज किया, मेरे मौला मेरी परेशानी दूर हो जाए, मेरी मुश्किलें आसान हो जाए। रब्बे करीम जब मेरी परेशानी दूर हो जाएगी तो मन्नत मांग ली कि मैं पैदल चलकर खाना काबा की चौखट का बोसा ले लूंगा। और दूसरी रवायत के मुताबिक क्या आका मैंने ये मन्नत मांगी कि मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, मैं पैदल चलकर जन्नत की चौखट को छूऊंगा। आका जब जवान था मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, मेरे अंदर ताकत थी, मेरे तमन्नाओं की तकमील नहीं हुई, मेरे अंदर हिम्मत थी, मेरी आरज़ू भर नहीं आई। हुजूर अब बुढ़ापे में मेरी मन्नत पूरी हुई, नजर कैसे होता? मदीना से मक्का 460 माइल दूर है, हुजूर मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकता। और पहली रवायत के मुताबिक कि आका परेशानी की हालत में जुबान से बात निकल गई थी कि पैदल चलकर जन्नत की चौखट का बोसा ले लूंगा। हुजूर अब बात समझ में आई कि दुनिया में जन्नत कहां से पाऊं तो जन्नत की चौखट का बोसा, अब क्या करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन्नत क्या थी? कहा पैदल चलकर खाने काबा के चौखट की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर तो तुम्हें पैदल ही जाना होगा।
आने वाले ने कहा मेरे आका मैं बड़ा कमजोर हो गया, इतनी दूर पैदल नहीं चल सकता, घर से मस्जिद नबी आते आते पसीना आ जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें पैदल चलना होगा। क्या दूर बड़ा कमजोर हूँ, बिनाई भी कमजोर हो गई। ए आका अगर सवारी के लिए कहेंगे तो मेरे पास कोई सवारी भी नहीं है। ए मेरे आका अगर आप कहेंगे किराए की सवारी ले लो तो मदीना का सबसे गरीब इंसान मैं हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है कि जो सवारी का इंतजाम करूं। जान रहा है कि रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में हम रास्ता तो निकल ही जाएगा। कितना यकीन है हजरत गिरामी पैदल भी नहीं जाऊंगा, सवारी भी नहीं है, सवारी के लिए पैसा भी नहीं है और नजर भी उतारना चाहता। अल्लाह के रसूल के लम्हाए मुबारक पे मुस्कुराहट की लहरें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें पैदल चलना होगा। वो आने वाला ज़ईफ लम्हाए मुबारक पे मुस्कुराहट की लहरें देख रहा, समझ गया कि अबरूए खमदार से इशारा होने वाला, कोई न कोई रास्ता निकलने वाला है। तड़प कर खड़ा हो गया, कहा आका नजरे इनायत फरमाते, मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया घबराओ नहीं, पैदल मक्का जाने की जरूरत नहीं है। नगर नगर डगर डगर गली गली कूचा कूचा घूम कर जन्नत तलाशने की जरूरत नहीं है। अरे बारगाहे मुस्तफा से पैदल अपने घर चला जा, माँ के पैरों को चूम लो, जन्नत की चौखट को चूम लोगे, माँ के कदमों को चूम लो, खाने का माँ के कदमों को चूम लो, खाने काबा की चौखट को चूम लोगे, माँ के पैरों को चूम लो, जन्नत की चौखट को चूम लोगे। आने वाले ने कहा मेरे आका मैं बड़ा बदनसीब इंसान था, हुजूर मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अब क्या करूं? क्या घबराओ नहीं, माँ का मकाम इससे भी आला है, माँ का मकाम इससे भी बुलंद है। अल्लाह के रसूल की मिलाद हो गई है, रसूल हकदारों को हक दिलाने के लिए आ गए हैं। अरे माँ के का कदम नसीब नहीं है तो माँ की कब्र पर चले जा, कब्र की मिट्टी को चूम लो, खाना काबा की चौखट को चूम लोगे, कब्र की मिट्टी को चूम लो, जन्नत की चौखट को चूम लोगे। कहा मेरे आका बड़ा बदनसीब हूँ, जब पैदा हुआ तो उसी वक्त माँ का इंतकाल हो गया, मुझे ये भी मालूम नहीं मेरी माँ किस कब्रिस्तान में दफन है, अब क्या करूं? क्या घबराओ नहीं, माँ का मकाम इससे भी बड़ा। दुनिया वालों ने माँ के मकाम को पहचाना नहीं है। हजरत गिरामी मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए, सारे आलम के लिए रहमत बनकर, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए हैं, तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। मेरे आका बज़ाहिर मदीने तैयबा में है, लेकिन हिंदुस्तान की बेवाओं को देख रहे हैं। न मोबाइल का जमाना है, न टेलीविजन का जमाना है, न टेलीफोन का जमाना है, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो गायबदान नबी है। मेरे आका बज़ाहिर मदीने तैयबा में है, हिंदुस्तान की बेवाओं को देख रहे हैं। हिंदुस्तान में औरतों पर जुल्म हो रहा है, औरतों को बेटे अभागन कर रहे हैं, बेटे माओं को मनहूस कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है दुनिया के इंसानों सुनो, बाप जिंदा है जब भी माँ काबिल ताज़ीम है, बाप मर जाए जब भी माँ काबिल इज्जत है। माँ ऐसी अजीम हस्ती कभी अभागिन हो ही नहीं सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद नहीं हुई थी, बेटे माओ को अभागन कह रहे थे, रसूल की मिलाद हो गई। अल्लाह के रसूल ने हकदारों को हक दिला दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कब्रिस्तान का पता नहीं है तो घबराओ नहीं, माँ का मकाम इससे भी आला है। माओ पर बड़ा जुल्म हुआ है, माओ पर बड़ा सितम हुआ है, बेटों ने माओ को अभागन कहा है, बेटों ने माओ को मनहूस कहा है। लिहाजा ये दुनिया के इंसानों सुनो, बाप जिंदा है जब भी माँ काबिल ताज़ीम है, बाप मर जाए जब भी माँ काबिल इज्जत है। माँ ऐसी अजीम हस्ती कभी अभागन हो ही नहीं सकती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने घर चले जा,
जाने के बाद घर के किसी खित्ते को, किसी गोशे को, किसी चप्पे को एक दायरा बनाना, एक निशान खींच लेना और तसव्वुर करना यही वो जमीन है जिस जमीन के नीचे तेरी माँ दफन है। ये तसव्वुर करके उस जमीन को चुन लो, जन्नत की चौखट में उस जमीन को चुन लो, खाने का आईने का दूसरा रुख भी देख लिया। रसूल की मिलाद हुई, हज़रत गिरामी हकदारों को हक मिल गया। अल्लाह के रसूल ने इंसान को जीने का सलीका बताया, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्श की पे तशरीफ लाए। हज़रत गिरामी बुजुर्गों से कहा, कौन ऐसा पहाड़ था जो मेरे मुस्तफा पर नहीं तोड़ा गया? अल्लाह के रसूल का जो नाम ले लेता था उसे आग के अंगारे पर लेटाया जाए। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई कलमा पढ़ लेता था सारे मदीना में घिसेटा जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें असर पर हालत नमाज में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में होते थे तो पुष्प पर ऊंट को झड़ियां रखी जाती थी। गर्दन नूरी में चादर डाल के ऐसे खींचा जाता था कि आंखें बाहर आ जाती थी। लेकिन उस वक्त भी मेरे मुस्तफा ने उनके लिए बददुआएं नहीं की हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यही फरमाया कि अल्लाह इस कौम को हिदायत दे, ये कौम मुझे पहचानती नहीं। दुनिया कहती है इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। नौजवानों, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम रसूल के अखलाक से फैला है, रसूल के किरदार से फैला है, रसूल के कैरेक्टर से फैला है। इसी अखलाक के धनी, इसी कैरेक्टर के अजीम रहबर को कि मिलाद का जो रब कदीर ने एहसान से ताबीर किया है। परवरदिगार आलम का फरमान, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनीन की जात पर एहसान किया कि उनके दरमियान अपने महबूब को भेज दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद में इंसान को जीने का सलीका मालूम किया, इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम किया। पूरी दुनिया में अगर कलमा के पढ़ने वाले मौजूद हैं तो ये तलवार के जोर पर नहीं, रसूल की अखलाक, रसूल के किरदार से, रसूल के कैरेक्टर से अल्लाह के रसूल ने वो अखलाक पेश किया कि बेगाने भी अपने हो गए। अल्लाह के रसूल ने वो कैरेक्टर पेश किया कि दूसरे भी अपने हो गए। हज़रात गिरामी यही अखलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेकर सहाबा पूरी दुनिया में फैले, औलियाए कामिलीन, बुजुर्गान दीन, आले रसूल दुनिया के खित्ते खित्ते में फैले और इसी अखलाक की बुनियाद पर हज़रात गिरामी इस्लाम को फैलाया। लेकिन आज सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी है, दौलत हमारे हाथ आ गई, सरवत पर हमारा कब्जा है, जमीन हमारे पास है, जायदाद हमारे पास है, एयर कंडीशन के मकानात हैं, सवारियां हैं, सब है, लेकिन अखलाक के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे। अखलाक इतना गिर गया कि बाप बेटे में नफरत है, माँ बेटी में बगावत है, भाई भाई में दुश्मनी है, पड़ोसी पड़ोसी में नफरत है। जिसे अखलाक की बुनियाद पर इस्लाम पूरी दुनिया में फैला था, आज हज़रात गिरामी वही अखलाक का पैकर अखलाक को भूल चुका। लिहाजा जरूरत है मुसलमानों कि वही अखलाक, वही किरदार, वही कैरेक्टर को अपनाएं जो अखलाक पेश करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया पर। और अल्लाह के रसूल ने हमें मिजाज दिया है, मुस्तफा ने हमें बताया है कि कल मैदान महशर में इंसान का सबसे वजनी अमल अगर कुछ होगा तो उसका अखलाक होगा, किरदार होगा, कैरेक्टर। 5 लाख लगाकर हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे, प्राइवेट से 10 लाख, लेकिन उसे वजनी अमल नहीं बताया गया। जेठ बैसाख में रोजा रख रहे हैं, वजनी अमल नहीं बताया गया। जाड़े की सर्द रातों में नमाज पढ़ रहे हैं, वजनी अमल नहीं बताया गया। इंसान का सबसे वजनी अमल अगर कुछ है तो उसका अखलाक है, किरदार है, कैरेक्टर। लिहाजा मुसलमानों, रसूल की मिलाद अगर हम बना रहे हैं तो रसूल की हयात को अपने लिए मिशल राह से राह हिदायत है।
इस मिशन को लेकर अल्लाह के रसूल आए थे, जो पैगाम हमें दिया। हम रसूल से मोहब्बत करते हैं तो रसूल की हयात को अपने लिए मिशन में हिदायत करना। हमारी पेशानी जो सजदा के लिए तड़प रही है, इश्क़ रसूल के साथ रब की बारगाह में झुकाते हुए चले। नमाज की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें, अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा। मस्जिदों को भरे, अल्लाह हमारे घरों को भरेगा। हम में से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दर्द का दरमा बने, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जख्म का मरहम बने, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के हक को अदा कराए, अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप को राजी कर लें। जब हमारे माँ बाप हमसे राजी हो जाएंगे तो हमारा परवरदिगार भी हमसे राजी। लिहाजा मुसलमानों, इसके बाद मुझे दूसरी महफिल, दूसरे से फिर तीसरी महफिल में जाना है। और मेरी निगाहें देख रहे हैं कि अभी तो आपका 12 बज रहा, वहां न मालूम क्या होगा, जाने के बाद सब बेहोश नहीं होंगे। रब्बे कदीर तौफीक मरहमत फरमाए कि हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी के लम्हात को गुजारें। इतना जरूर करें कि जब खाएं हलाल खाएं, जब बोले सच बोले, और अल्लाह की रजा की खातिर माफ करने की आदत है। अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो अल्लाह की रजा की खातिर माफ कर दें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा। तुम यहाँ माफ करोगे, अल्लाह तुम्हें वहां माफ करोगे। परवरदिगार आलम हमें और आप सारे मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक बरकत फरमाए। जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ नबी का मीलाद मना रहे हैं, अज़ीज़ गिरामी जनाब रुस्तम साहब ने सजाया है, संवारा है, और आप सब आए हैं। अल्लाह इसे शर्फ कबूलियत से नवाजे। परवरदिगार आलम आप सब के रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमाए, आपकी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा दे। अगर आप बेनमाजी हैं तो अल्लाह आप सबको नमाजी कर दे, और नमाजी हैं तो अल्लाह आपकी नमाज को खुशू खुशू अता फरमाए, और आपस में तफाक इत्तेहाद के साथ जिंदगी के लम्हात को गुजारें।